الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اقتدار انور کی رپورٹ دیکھیے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس ریاست کے ادارے نے چند سطر کی درخواست پر ایسا فیصلہ سنایا، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کیا ہے۔ قوم سڑکوں پر بیٹھی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن وقت پر کرائے جائیں۔ امیر لبیک کراچی و پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی مفتی محمد قاسم فخری نے الیکشن کمیشن پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی حلال کمائی کو الیکشن کمیشن کے یک طرفہ فیصلے کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ دھرنے کے شرکا نے جمعے کی نماز الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہی ادا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اقتدار انور، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن آفس کے باہر دھرنا دیا۔ مظاہرین سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کے حقوق کی تحریک جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیلات محمد کامران کی رپورٹ میں۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف سیاسی جماعتوں کے احتجاج اور دھرنے جاری ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی الیکشن کمیشن آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ دھرنے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری سطح پر ملازمتیں نہیں دی جا رہی۔ ہماری مائیں بہنیں چنگچی رکشوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، جس کے لیے کراچی حقوق تحریک چلا رہے ہیں۔ پہلے کراچی جو دھوکے کھا کھا کر یہ سوچنے لگے تھے کہ اب ان کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ ان کے لیے مستقبل کی نوید بن رہے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ امید بنے ہیں، آپ یقین بن رہے ہیں اور آپ اس شہر کے نوجوانوں کا مستقبل بن رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ میٹرو لاہور، ملتان یا دیگر بسیں کراچی کے پیسوں سے بنی ہیں۔ کراچی کے عوام صرف ترازو پر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ میٹرو لاہور کی بھی ہمارے پیسے اس میں شامل ہے، میٹرو ملتان کی ہو ہمارے پیسے اس میں شامل ہے، میٹرو پشاور کی ہو ہمارے پیسے اس میں شامل ہے۔ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے حکمران عیاشی کرتے ہیں، لیکن اس شہر کے لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ ہم پر بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا الزام لگایا گیا، جس پر الیکشن کمیشن معافی مانگے۔ انہوں نے شہر میں 1000 مقامات پر کارنر میٹنگز کرنے کا بھی اعلان کیا۔ یہ بھی کہا کہ ہر جگہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کو بے نقاب کرے گی۔ کیمرامین احسن امین کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے کبھی نہیں چاہا کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوں۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ مزار پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نوٹوں سے بھری گاڑیاں پنجاب بھیجنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، یہ سفید جھوٹ ہے۔ گاڑیاں بھر کے بھیجی ہیں، یہ وہی بات ہے۔ میں بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں لانچوں میں پیسے جا رہے تھے نا، 2 ارب 5 ارب، وہ پکڑے گئے۔ وہ آج تک کسی نے دیکھے نہیں کہ وہ گئے کہاں۔ 5 ارب یا 2 ارب تو پتہ نہیں کتنے تھے۔ کسی کے گھر کے بیسمنٹ میں سے 2 ارب نکلے تھے، لانچ میں سے 5 ارب نکلے تھے۔ تو بھائی وہ اگر پکڑ لیا آپ نے، وہ حکومت سندھ کو واپس کرو۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا کرنے والے الزامات، میں تو الزامات ہیں نا یہ، لیکن جو پروف آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اکثریت سے کامیاب ہونے والے کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر کہا کہ یہ خبر میرے لیے بھی حیران کن تھی۔ سندھ حکومت نے کبھی نہیں چاہا کہ انتخابات ملتوی ہوں۔ میں نے خود کنوے کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم الیکشن 24 تاریخ کو چاہ رہے تھے، جو الیکشن اچانک پوسٹ پون ہے۔ اس دن دوپہر کو یہ خبر آئی کہ پٹیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، جو فیصلہ محفوظ کیا تھا MQM کی، انہوں نے درخواست کی تھی آگے بڑھانے کے لیے اپنی پٹیشن میں، جس کو ہم نے آفیشلی اپوز کیا تھا۔ تو یہ وہ بیٹھے ہیں تو ہمارے خلاف نہیں بیٹھے، الیکشن کمیشن کے خلاف بیٹھے۔ عرس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ جنید فیروز، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مونسون کے تیسرے سپیل برسنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق سسٹم کل سے 26 جولائی تک سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کراچی میں کل سے 26 جولائی تک تیز بارش بھی متوقع ہے۔
कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम बरसने को हो तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल का सिस्टम इंतहाई ताकतवर है जो रात को सिंध में दाखिल होगा। इस सिस्टम के तहत सिंध में 23 जबकि कराची में 24 से बारिश हो सकती है। कराची में 24 से 26 के दौरान मुतवक्के है और 24 की शाम या रात और फिर 25 को हैवी स्पेल भी मुतवक्के है। उसमें बाकी सिंध के जो अजला हैं, मशरकी सिंध हो गया जैसे उमरकोट, ऊपर सांगड़ और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर, वहाँ तो हो सकता है 22 की रात को ही किसी जगह पर हो जाए। 22 की रात से मानसून हवाएं दाखिल होना शुरू हो जाएंगी तो फिर 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध के बाकी अजला में और कराची में 24 से 26 के दौरान इम्कान है और इस दौरान में तेज स्पेल भी मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। कराची में बारिश 24 जुलाई की रात जबकि 25 को तेज होगी। तीसरा स्पेल मानसून के पहले स्पेल जैसी शिद्दत से बरसेगा। पावरफुल स्पेल है। पहला जैसे पहले स्पेल में खासी तेज़ बारिश हुई थी कराची में तो उस टाइप की लग रही है कि हो सकता है 24 की रात को या 25 के दिन का जो है उसमें वैसा ही स्पेल हो जाए कराची में भी। और जो लोअर सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा और उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें भी ऐसी ही तेज स्पेल मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने तीसरे स्पेल की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिशों के हवाले से अगले 3 दिन इंतहाई अहम हैं। बारिशों की पेशगोई के मद्देनज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में बारिशों से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंतजामात से मुतल्लिक मुर्तज़ा वहाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने अपने अजला में कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रवां दवां रखने के लिए इनकी रूट्स पर ही इंतजाम किए जाएं ताकि ट्रैफिक दूसरी शराहों की तरफ ना जाए। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट्स थे इन्हें ख़त्म करके पानी की रवानी बेहतर की जाए। अगर तमाम अफसरान और अमला फाल रहेगा तो हम बेहतर अंदाज में पानी की निकासी का अमल मुकम्मल कर सकेंगे। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों से कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स की इमारतें तबाह और मुतासर होने का नोटिस ले लिया। नुकसानात की तफसीलात भी तलब कर ली। महकमा स्कूल तालीम ने सिंध के 30 अजला के ज़िले अफसरान को खत इरसाल करके तफसीलात तलब कर ली हैं। बॉयज़, गर्ल्स और मिक्स स्कूल्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। जिन स्कूल्स की इमारतों को मानसून बारिशों से मुकम्मल नुकसान पहुंचा है इनकी भी तफसीलात मांगी गई हैं, जबकि स्कूल इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बस पीपल्स बस सर्विस के साथ मुंसलिक हो गई है। ग्रीन लाइन के मुसाफिर अब नुमाइश से पीपल्स बस सर्विस के जरिए भी सी व्यू तक जा सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक बस बरास्ता ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार, बिलावल चुरंगी और डोलमन से सी व्यू जाएगी। ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस अलहदा और आज़ादाना तौर पर चलेंगी। दोनों के किराए अलग अलग वसूल किए जाएंगे। इस रूट पर ग्रीन लाइन बस सस्ता और आरामदाह सफर मुहैया करेगी। सिंध हुकूमत ने जाम सादिक पुल के मुतबादिल नया पुल बनाने का फैसला कर लिया। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। जाम सादिक पुल पर आए रोज ट्रैफिक जैम पर सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ वीडियो लिंक का इजलास हुआ, जिसमें कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन महकमा बल्दियात को देने का फैसला किया गया। प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का जदीद निज़ाम मुतारिफ होगा। कि इलेक्ट्रिक के बिलों में जालिमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ एम.ए. जिन्ना रोड पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने एहतजाज किया। सदर शर्जील गोपलानी ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। टैक्स आयद होने पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने एम.ए. जिन्ना रोड पर आलम शाह बुखारी मजार पर मुजाहरा किया। बोले बिजली के बिलों में जालिमाना सेल टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद सदर शर्जील गोपलानी ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफा और सेल टैक्स वापस लिया जाए। तमाम दुकानदारों का नॉन फाइलर बनाकर 6,000 रुपए का सेल टैक्स आयद करना मुस्तरद कर दिया। आज एक बिल मेरे सामने आपको मैं कैमरे की जरूरत से दिखा 81,000 का जो बिल है उसके ऊपर 50,000 रुपए फिक्स टैक्स लगा दिया इन्होंने और साथ में 24% जो है वो सेल टैक्स, फर्दर सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, एक्स्ट्रा सेल टैक्स गवर्नमेंट अलग ले रही है। इनकम टैक्स के मद में पैसे अलग ले रही है। हम ये बिल नहीं भर रहे, हमने ऐलान किया था, बिल्कुल बिल हम नहीं भर रहे। आज का हमारा दूसरा एहतजाज है जो हमने 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया था। कल हम गार्डन पे शाम को 4 बजे फिर एहतजाज करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ये नहीं समझेगा हम एहतजाज खत्म करने जा रहे हैं। हम अगले हफ्ते हम तो लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम मंडे को भी एहतजाज कर रहे हैं।
हम कल जो है अपने मंडे की एहतजाज की कॉल देंगे, साथ साथ पूरे पाकिस्तान को बंद करने की भी हम कॉल देंगे। नुमाइंदा ताजी तंजीमों और उनके अहदेदारों ने बिजली के बिलों में सेल टैक्स 6,000 रुपए को मुस्तरद कर दिया और कमर्शियल बिलों पर 6,000 रुपए इजाफी सेल टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। माली साल 2022 में फूड ग्रुप की दरामदात 8% इजाफे से 9 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई हैं। पाकिस्तान ने 62 करोड़ 61 लाख डॉलर की चाय और 3 अरब 55 करोड़ डॉलर मालियत का पाम ऑयल दरामद किया है। माली साल 2022 में पाकिस्तान ने फूड ग्रुप की दरामदात के नए रिकॉर्ड बना डाले। फूड ग्रुप का दरामदी बिल 9 अरब डॉलर से जायद रहा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 के मुकाबले माली साल 2022 में फूड ग्रुप की दरामदात में 8% का इजाफा हुआ। चाय की दरामदात 7.86% इजाफे से 62 करोड़ 61 लाख डॉलर रही। सोयाबीन ऑयल की दरामदात 106% इजाफे से 19 करोड़ 17 लाख डॉलर रही। पाम ऑयल की दरामदात 33% इजाफे से 3 अरब 55 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने 28 लाख टन पाम ऑयल दरामद किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में दूध, क्रीम और बच्चों के दूध की दरामदात 15% कमी से 16 करोड़ 21 लाख डॉलर खर्च किए गए। मसाला जात की दरामदात 3.81% कमी से 21 करोड़ 61 लाख डॉलर रहे। गंदम की दरामदात 19.12% कमी से 79 करोड़ 52 लाख डॉलर रही। खुश मेवा जात की दरामदात 16.78% कमी से 6 करोड़ 52 लाख डॉलर रही। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में मजीद इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया है। 25 जुलाई को होने वाले इजलास में ऑनलाइन दाखिला पॉलिसी और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तालीम खालिद हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस और रीजनल डायरेक्टर्स शिरकत करेंगे, जिसमें 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में खुसूसी अफराद की भर्तियों के कोटे, कॉलेजेस की नई इमारतों के मंसूबे, नए फर्नीचर्स, एकेडमिक प्लान और ऑनलाइन दाखिला और हाजिरी पॉलिसी पर भी गौर होगा। इजलास में लतीफ डे मनाने के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हसन का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामात को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर मौजूद वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास में कहा कि उम्मीद है कि साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए इंतजामिया बल्दिया गरबी मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि औरंगी, मोमिनाबाद, मंगू पीर और सुरजानी टाउन में मौजूद इमाम बारगाहों का वो खुद दौरा करेंगे और मुंतज़मीन की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज़ के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी करेंगे। कोशिश करेंगे कि अज़ादारान को गुज़िश्ता सालों की निस्बत मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम कर सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शिया उलमाए कराम ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुहर्रम की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, मुशीर बराए मजहबी अमूर फयाज भट्ट, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी कराची और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। उलमाए कराम की जानिब से उलमा अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन निकवी, मौलाना सैयद रजी हैदर जैदी और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से तजवीज़ें दी। वज़ीर आला सिंध ने उलमा को यकीन दिलाया कि इनकी तजावीज़ पर अमल होगा। दुआए ज़हरा के शोहर ज़हीर की जान को खतरात लाहक होने लगे। ज़हीर ने सिटी कोर्ट थाने में दरखास्त के बाद सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सिटी कोर्ट में मशकूक मुसल्लह अफराद हमला कर सकते हैं। मुझे और दुआ को जान से मारने की धमकियां रिकॉर्ड पड़ी हैं। SHO थाना सिटी कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया। लिहाजा सेक्रेटरी दाखिला सिंध, IG सिंध को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी जाए। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को 29 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कारोबारी खबरों की जानिब आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची परवाज रोकने वाले कोई नहीं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा होकर 228 रुपये 37 पैसे की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 230 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डॉलर की ना रुकने वाली उड़ान जारी, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया। आज डॉलर 226 रुपये 81 पैसे से बढ़कर 228
₹33.37 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते अब तक डॉलर $17.42 महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की मद में 38 करोड़ 90 लाख डॉलर की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर मजीद कम होकर 9 अरब 32 करोड़ डॉलर रह गए हैं। माहिरीन का कहना है कि माली साल 2022 में दरामदी बिल 42% इजाफे से 80 अरब डॉलर से तजावज करने से रुपए पर शदीद दबाव बना रहा है। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 महंगा होकर पहली बार ₹230 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो ₹2 महंगा होकर ₹231 और बरतानी पाउंड ₹1 महंगा होकर ₹271 का हो गया है। भारतीय दिरहम 60 पैसे महंगा होकर ₹61.60 की बुलंद सतह और सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर पहली बार ₹60 का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात ने बैंकों पर कार्टेलाइजेशन की वजह से डॉलर महंगा होने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने हुकूमत से बैंकों की फॉरेंसिक ऑडिट और फिर सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। ये भी सवाल उठाया कि 210 पर डॉलर नहीं मिलता, फिर 2 घंटे के बाद 220 पर कैसे मिल जाता है। ताजिर हो या सन्नतकार, सभी यही कह रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी को रोकने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। डॉलर महंगा होने के असरात शदीद मनफी होंगे। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात ने कहा है कि डॉलर महंगा करने में कमर्शियल बैंक्स मिले हुए हैं। बैंकों के खिलाफ पहले भी कार्टेलाइजेशन सामने आई है। जब तक बैंकों का कार्टेलाइजेशन नहीं टूटेगा, डॉलर महंगा ही होता रहेगा। बैंकों ने कार्टेल बनाया है, ये बैंकों की वजह से ही सारा हुआ है। जैसे कि आज से 4-5 महीने पहले टी बिल्स में उन्होंने कार्टेल बना के 2% एक्स्ट्रा पे हमारी टी बिल्स का एक्शन किया था, जिसका शौकत अजीज़ साहब ने नोटिस भी लिया था और टीवी प्रोग्राम में भी कंफर्म किया था और लिखा, उनके खिलाफ कंप्लेन भी हुई थी। नासिर हयात ने यह भी कहा कि डॉलर की कमी होगी, लेकिन ये बताया जाए कि 210 पर डॉलर नहीं मिलता तो 2 घंटे बाद 220 पर कैसे मिल जाता है। मौजूदा सूरत हाल में बैंक्स फायदा उठा रहे हैं। डॉलर की कमी ज़रूर होगी, लेकिन इतनी नहीं है कि 12 बजे डॉलर 210 है, 2 घंटे बाद कहते हैं डॉलर नहीं, और 2 घंटे बाद डॉलर 220 में आ भी जाते हैं। ये सारा काम अपनी जगह जो तकलीफ है उसके बावजूद असल इस मौके का फ़ायदा बैंक उठा रहे हैं। इस कार्टेल को तोड़ना चाहिए और इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। नासिर हयात ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर बैंकों का कार्टेलाइजेशन को तोड़े, बैंकों का डॉलर के मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अगर दरामदी माल की LC नहीं खुली तो सप्लाई चेन टूट जाएगी। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी गई। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स इजाफे से 40,000 की सतह बहाल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर रिकवरी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में मंदी तेजी में बदल गई है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 245 पॉइंट्स इजाफे से 40,077 की सतह पर बंद हुआ और स्टॉक मार्केट में 4 अरब 72 करोड़ रुपए मालियत के 17 करोड़ 10 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 45 अरब रुपए इजाफे से 74,753 अरब रुपए पर जा पहुंची है। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने पर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 900 रुपये और 10 ग्राम सोना 772 रुपये महंगा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $42 महंगा होकर $1724 फी औंस पर जा पहुंचा है, जिसके बाद से मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 1,45,400 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 772 रुपये महंगा होकर 1,24,657 रुपये का हो गया है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना और डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। सिंध हुकूमत ने शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को यकीनी बनाने के लिए पेचीदगियों को खत्म करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी विंग के अफसरान की खिदमात महकमा बल्दियात की सपुर्द कर दी हैं, जो 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को यकीनी बनाने के साथ साथ इंतजामी पेचीदगियों को भी खत्म कर देंगे। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी विंग के अफसरान सेक्रेटरी बल्दियात के मातहत काम करेंगे। महकमा एक्साइज के अफसरान शहरी प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी टैक्स का मामला 3 सालों के अंदर हल कर देंगे। स्टेट बैंक के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई के असर को कम करने के लिए निचले ग्रेड के अफराद को ज्यादा इजाफा दिया गया है। OG1 से OG3 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक हर 2 साल के बाद अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई की शरह के हिसाब
حساب سے اضافہ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مطابق تنخواہوں میں یہ اضافہ پچھلے سال جولائی میں ہونا تھا، جو کہ اب 1 سال کی تاخیر سے منظور کیا گیا ہے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نچلے گریڈ کے افراد کو زیادہ اضافہ دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ فائنانس ڈویژن نے وفاقی کابینہ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بورڈ آف ڈائریکٹر کی سمری بھیجی تھی۔ وفاقی کابینہ نے اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سمری کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری کے بعد اسٹیٹ بینک نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ڈاکٹر علی چیمہ، ڈاکٹر اکبر زیدی، طارق پاشا، نجف یاور، فواد انور، ندیم حسین، محفوظ احمد خان اور زاہد فخر الدین شامل ہیں، اور سیکرٹری فائنانس اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی 10 رکنی بورڈ کے رکن ہوں گے۔